بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ اذا اردت ان تکسب الدنیا فتعلم واذا اردت ان تکسب الآخرہ فتعلم واذا اردت ان تکسب الدنیا والآخرہ فتعلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قرآن پاک میں علم کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ علم والے سب سے اونچے ہوں گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کا کلام ہے. اللہ کتنا بڑا ہے کسی کو پتہ نہیں, بہت بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے, ہماری عقل سے بڑا ہے. اس کا قرآن بھی پھر سب سے بڑا ہے. اور تو اس کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ساری دنیا میں سب سے اچھے گردانے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. الحمدللہ اس مدرسے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. قرآن کے ساتھ علوم اسلامیہ علم کہلاتے ہیں. علم کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک مثال, ایک دنیا میں اس وقت 6 ایسے ملک ہیں کہ جن کے پاس جوہری طاقت, ایٹمک پاور, اور وہ سارے کے سارے کافر ہیں, یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں, سارے کافر ہیں. لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ جوہری طاقت ہے اور وہ ہے پاکستان. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہانی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, مشہور سائنٹسٹ اور پاکستان, ہالینڈ میں جوہری تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ایک ایسا طریقہ انہوں نے سیکھ لیا جسے کہتے ہیں سینٹریفیوجی. بہت تھوڑے سے عرصے میں ایٹم بم تیار. اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا ڈاؤن فال ہوا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ غداری کی اور بنگالیوں کو بھگا کر پاکستان سے جدا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر سویا نہیں, روتا رہا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا ملک آدھا حصہ ہو گیا, ٹوٹ گیا. مغربی پاکستان مشرقی پاکستان تھا, اب صرف پاکستان رہ گیا, بنگلہ دیش رہ گیا. میں نے سارے کام چھوڑے, پاکستان آیا اور ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں وزیر اعظم تھے. ان کو بتایا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ مختصر ترین عرصے میں ایٹم بم تیار کر سکتا ہوں بشرطے کہ مجھے سہولت مل جائے. ارے ان کا تشریف لاؤ. غلام اسحاق خان اس وقت وزیر مالیات تھے, پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا. ان کو بلایا اور سنو, آج کے بعد
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटम बम बनाने के सिलसिले में जितने पैसे की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, दो। हम पाकिस्तानी घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन एटम बम बना के छोड़ेंगे, इसलिए कि इंडिया ने ब्लास्ट कर दिया है और हमें धमका रहा है और गुस्सा निकाल रहा है कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे, हम एटम बम मार कर खत्म कर देंगे। अच्छा, खामोशी के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। जब मुकम्मल हो गया तो ज़ियाउल हक को बताया कि बम तैयार है। हिंदुस्तान, अमेरिका, इसराइल, हमारे सारे दुश्मन अंदर और बाहर, अफगानिस्तान की जंग की वजह से ज़ियाउल हक से नाराज थे, लिहाजा उनके जहाज को हादसा पेश आ गया और वो 17 जनरलों के साथ शहीद हो गए। नवाज शरीफ की हुकूमत आई और अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान के पास एटम बम तैयार है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन कर रहा है कि ब्लास्ट न करना, एटॉमिक पावर होने का ऐलान न करना, कितने डॉलर चाहिए, कितना असला चाहिए, कितना टैंक चाहिए, कितने जहाज चाहिए, सब ले लो, लेकिन एटॉमिक पावर होने का ऐलान न करना। नवाज शरीफ ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरी कौम चाहती है कि अगर अल्लाह ने हमें कोई सलाहियत दी है तो उसका ऐलान करें। चागी कोयटा से आगे पहाड़ी पर 27 तारीख को एटम बम का धमाका कर दिया गया। याद आप, दुनिया में 6 काफिर मुल्कों के बाद एक मुसलमान मुल्क भी आज एटॉमिक पावर है। हम 22 करोड़ हैं पाकिस्तान में, इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़, हमसे 7 गुना ज्यादा है। लेकिन इल्म की ताकत यह है कि जब राजीव गांधी ने हमारी सरहदों पर फौजी लगा दी तो ज़ियाउल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दिल्ली गया और चाय पीते पीते राजीव गांधी से कहा, सुनो, अगर तुमने हमें छेड़ा और एटम बम इस्तेमाल करा तो ये सुन लो, दुनिया में हिंदू मुल्क एक है, हिंदुस्तान, लेकिन मुसलमान मुल्क 57 है, उसमें से पाकिस्तान एक है, बाकी 56 है। अगर तुमने एटॉमिक पावर इस्तेमाल करा तो हम हिंदुस्तान को रुए जमीन से खत्म कर देंगे, इतने एटम बम मारेंगे। तुम भी बम मारना, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन 56 इस्लामी मुल्क बाकी होंगे, कर लो। अच्छा, मैं जा रहा हूं। बताने वाले बताते हैं सेक्रेटरी कि खड़े खड़े उसकी पतलून में पेशाब निकल आया। एटम बम, पूरा हिंदुस्तान खत्म, पूरा हिंदुस्तान। आपको बताना क्या चाह रहा हूं मैं, आप यहां पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान इस जमीन पर सबसे ताकतवर किताब है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और जितना बड़ा अल्लाह है इतना बड़ा उसका कलाम है। और जो उसको अभी आपने सुना, वान तुमला अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं कि उनके अंदर ईमान भर जाए, ईमान आ जाए, तो ईमान की ताकत के सामने कोई ठहरता नहीं।
अफगानिस्तान में 10 साल रशिया ने दुनिया भर का असला इस्तेमाल करा कि अफगानियों को दबा दें। अफगानियों ने कहा नहीं, हम किसी काफिर को अपनी जमीन पर नहीं छोड़ेंगे, जिहाद करेंगे। रशिया भाग गया। अमेरिका ने 20 साल अकेले नहीं, नेटो 40 यूरोपियन ममालिक को साथ मिलाकर अफगानिस्तान पर बम बरसाए। 20 साल बाद कहा ये तो मानते ही नहीं, कहा हमारी जान छोड़ो। पाकिस्तान से कहा हमें वहां से निकलवा दो। ये क्या है? ये ईमान है जो काफिर को नतीजतन सरेंडर करवाती है, उस पर अपनी ताकत का इजहार करती है। और अभी आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में समाअत फरमाया कि मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े खुतबा, आज कोई उनका नाम नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जानता है। तो आप भी इस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर अल्लाह ने कहा है आपसे, वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूना है। लिहाजा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लाऊना इन कुंतुम मुमिनीन। मैंने आपको कहा था कि एक मिसाल बस। इल्म इतनी ताकतवर चीज है कि जो इसको पकड़ लेता है, जो उसको समझ लेता है, जो उस पर अमल करता है, वो दुनिया के सारे लोगों पर गालिब आ जाता है। लिहाजा आपने भी कुरान भी पढ़ना है, हदीस भी पढ़नी है, फिक़ह भी पढ़नी है, अरबी भी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल भी पढ़ना है, कॉलेज में भी जाना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, तारीख भी पढ़नी है। इससे इल्म है। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया था कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म को हासिल करने के लिए जाना चाहे चाइना तक जाना हो, कहां मक्का अरब और कहां चाइना, तो पता चला कि इल्म की कोई शनाख्त नहीं होती। इल्म तो इल्म होता है बस। लिहाजा हमें भी चाहिए कि तमाम बच्चे जितनी यहाँ मौजूद हैं और जवान बच्चियां जितनी यहाँ मौजूद हैं, इल्म समंदर है, समंदर, उसकी गहराई को कोई पहुंच नहीं सकता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में आपको ये बात सुनाई कि इमाम शाफी ने फरमाया था, अगर तुम दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, और अगर आखिरत में ऊंची कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, और अगर तुम चाहते हो दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारी जोड़ी में आ जाए तो इल्म हासिल करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इल्म वो ताकत है कि जिसने सारी दुनिया के काफिर मुल्कों में एक मुसलमान मुल्क को सफ में लाकर खड़ा कर दिया एटॉमिक पावर की लाइन में कि ये भी ताकत रखता है। कोई अगर टेढ़ी आंख से इसको देखेगा तो इसके पास भी एटम बम है, हस्ती से मिटा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इल्म के रास्ते पर चलाकर, नबी की सीरत तय्यबा पर गौर फरमाकर अपने अंदर अखलाक, हिम्मत, और याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर गलबा हासिल करा अखलाक की ताकत से। अखलाक की ताकत से, तलवार की ताकत से नहीं, अखलाक की ताकत से। मक्के वालों ने बड़ी मुखालफत करी, बड़ी मुखालफत करी, बड़ी मुखालफत करी। आपने कहा नहीं। चाचा अबू तालिब हिमायती थे, उनके पास आए कि भतीजे को समझा लो, हमारे बुतों को बुरा न कहे वरना हम उसको मार देंगे। कहा खबरदार, अगर किसी ने एक बात भी मेरे भतीजे का लिया। सन 11 हिजरी में हजरत अबी तालिब का इंतकाल हो जाता है। ओए मक्का वालों को रास्ता साफ, अब इससे निपटेंगे हम।
4 दिन बाद आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद, जो आपकी हिमायती थी, बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी सियासतदान थी और हर जगह आपकी हिमायत, उनका भी इंतकाल हो जाता है। आप मक्के से मायूस होकर ताइफ जाते हैं कि शायद वहाँ का कबीला इस्लाम ले आए तो मुझे कुछ मदद मिलेगी। वहाँ वाले आपके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि आपको पत्थरों से मारते हैं। आप जख्मी होकर वापस मक्के आते हैं। उस साल को आमुल हुज़्र, सदमों गमों का साल। अभी ये सूरत हाल है कि अल्लाह की ज़ात वाहिदा आपको लैलतुल मेराज में आसमान पर बुलाती है। नबी आप गमगीन क्यों हो रहे हैं? वला तहिनु वला तहज़नु, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह तकवा वाले और एहसान करने वालों को साथ, जिसका मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जिसका अल्लाह हो जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसका बिगाड़ नहीं सकती। या तो आपने भी अल्लाह वाला बनना है इस इल्म के रास्ते से, नबी के तरीके पर। और ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा था अभी कि आपने अपने अखलाक से, हुस्न रवैये से दुनिया पर गलबा हासिल करा। इन सारे दुश्मनों को जब मक्का फतह हुआ तो आपने किसी से बदला नहीं लिया, सबको माफ। फौज को कहा, पुलिस को कहा, मक्का में जितने लोग हैं उन सबको बैतुल्लाह के मैदान में जमा कर दो। आप अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार हैं। आपने सवाल किया, माज़ा युफ़अलु बिकुम अल-यौम, आज तुम्हारा क्या असर किया जाए? तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, कितने सहाबा को शहीद किया है। कहा जी अखुल करीम, इब्न अखिल करीम, आप तो बड़े मेहरबान इंसान हैं, बड़े मेहरबान बाप के बेटे हैं। कहा जाओ, माफ कर दिया, छोड़ दिया, किसी से बदला नहीं लेंगे। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। अखलाक की ये चोट जब दिलों पर लगी तो कुरान ने गवाही दी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए नबी, आपकी तबलीग से इक्का दुक्का मुसलमान होते थे, लेकिन जब आपने अखलाक की मार मारी तो कबीले के कबीले, खानदान के खानदान, जमात की जमातें इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। तो पता चला अहसिन इलन्नास तस्ताबित क़ुलूबुहुम, लोगों के साथ अच्छाई करो, उनके दिल जीत लो। लिहाजा आपने भी इस इल्म के नतीजे में पहले अपने आप को बनाना है, इल्म की तकमील करनी है, और उसके बाद नबी के रास्ते पर चलते हुए हर एक को माफ कर देना है, किसी से कोई बदला नहीं लेना। अगर किसी ने ज्यादती की है तो माफ, अल्लाह के नबी माफ करते थे। हमने बेहतरीन माशरे की बुनियाद इल्म की बुनियाद पर रखनी है। हमें उम्मीद है कि यहाँ के असातिज़ा इंशाअल्लाह इस जील इस्लामी को, आने वाली नस्ल को इस नजरिए से पढ़ाएंगे और इस नजरिए से उनकी ज़हन साजी करेंगे कि वो इंशाअल्लाह माशरे में गुल खिलाएंगे और सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूनों को दिखाएंगे, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी मदीने की सल्तनत और मदीने की रियासत बनकर जाहिर होगा। मौला करीम हमें और आपको इस इल्म के गहवारे से हकीकी नगीने चुनने, उससे बहरावर होने और उसके नतीजे में अपनी ज़िंदगी बनाकर दूसरों की ज़िंदगी संवारने वाला मुअल्लिम और उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।